Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. In today's video, we are going to discuss the concept of an accomplice. Who is this person? How is he placed under the criminal system? What is the evidentiary value of an accomplice? So all of these things we are going to understand in this particular video. So let's start with that. Before I start with the video, I want to share a little information here. We have launched our new batch, which is a Pratigya batch for UPSC law optional paper. The price of this batch right now is 14,999. But if you'll use this code HINA Live, then you'll get more discount on this particular batch. Don't forget to use this code. I have said that on in many of my videos. We get a lot of queries from students that they are not getting the discounted price. The reason is that you are not using the promo code. So if you'll use this code, you will get the discount. Okay, the batch is starting from 17th of February and from evening. So the classes are 5 to 7. Monday to Friday. If you have any other query regarding this particular batch, you can contact our team. Also, we provide counseling to the students who want to prepare for UPSC. For that, all you have to do is go to the description box of this particular video and you will find a Google Drive link there, Google form, and click on that form, add your information, and then our team will contact you, and then you can ask them any questions you feel like regarding your preparation. Okay, so that is also free of cost. You don't have to pay anything for that. If there is an advantage, why not take it? Okay, so this is it for, regarding the batch. Now let's start with our video. What is the definition of accomplice? Accomplice per se is not defined anywhere under the Indian law. ना ही CRPC में defined था, अब ना BNSS में defined है, ना ही Indian Evidence Act में defined था, और अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है उसमें भी जो ये word है accomplice ये defined नहीं है. Legally, it is not defined. But what it means, an accomplice is a person who actively participates in the commission of a crime, either by aiding, abetting or encouraging the principal offender. So accomplice को अगर हम एक सिंपल भाषा में समझे, एक ऐसा इंसान जो क्राइम के होने में पार्टिसिपेट करता है इन सम कैपेसिटी, किसी ना किसी तरीके से जो क्राइम है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है. चार तरीके से. प्रिंसिपल इन द फर्स्ट डिग्री डायरेक्टली कमिट्स द क्राइम. तो अकम्प्लिस एक ऐसा इंसान है जो डायरेक्टली किसी के साथ मिलकर क्राइम कमिट कर रहा है, यानी कि दो लोगों ने मिलकर एक्टिवली अगर किसी के साथ कोई क्राइम कमिट किया तो वो दोनों अकम्प्लिस होते हैं. देन प्रिंसिपल इन द सेकेंड डिग्री असिस्ट एट द क्राइम सीन. सो एक्टिवली उसने तो क्राइम नहीं किया है लेकिन वो वहां प्रेजेंट था. जब फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ए इज द वन हु एक्चुअली किल्ड सी बट बी वॉज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, तो वो प्रिंसिपल इन द सेकेंड डिग्री माना जाता है, वो भी एक अकम्प्लिस है. देन एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट हेल्प्स बिफोर द क्राइम अकर्स. बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जहां पर कुछ लोग एक्चुअल क्राइम होने से पहले बहुत तरीकों से हेल्प करते हैं. सो दैट इज एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट, वो भी एक अकम्प्लिस है. एंड देन एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट, दैट इज असिस्ट आफ्टर द क्राइम इज कमिटेड. क्राइम कमिट होने के बाद अगर वो बॉडी, अगर कोई मर्डर का केस है, बॉडी डिस्पोज ऑफ करने में या फिर एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने में, इन सब चीजों में हेल्प कर रहा है, तो वो भी आपका अकम्प्लिस है, एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट कैटेगरी में फॉल करेगा. So all these things, all these definitions are not given anywhere under भारतीय साक्ष्य अधिनियम और BNSS. ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है कि where is accomplice defined under the CRPC or BNSS or any of the laws. The answer is that it is not defined anywhere. Its evidentiary value is given under the भारतीय साक्ष्य अधिनियम or before under Indian Evidence Act. Legal consequences क्या है of being an accomplice? Accomplices can face the same penalties as the principal offender. अगर जो accomplice है, अब A और B है, A ने अगर मर्डर कमिट किया है, B वहां प्रेजेंट था या दोनों ने मिलकर किया है, दोनों ही को सेम पनिशमेंट मिलेगी. Some jurisdictions offer reduced sentences for cooperation. कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर अगर जो अकम्प्लिस है वो कोऑपरेट करता है प्रोसिक्यूटर के साथ तो उसका सेंटेंस रिड्यूस कर दिया जाता है. और कोऑपरेशन करने का मतलब है कि वो एविडेंस देता है अगेंस्ट द मेन कल्प्रिट, और उस बिकॉज ही इज गिविंग एविडेंस नाउ इज बिकम द प्रोसिक्यूशन विटनेस, तो अब उसकी जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है. तो अगर वो कोऑपरेट करता है तब उस सिचुएशन में उसकी पेनल्टी रिड्यूस हो जाती है. Accomplice liability holds them accountable for the entire crime. अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो वो उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो कंप्लीट क्राइम के लिए होगी. वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो सिर्फ इतना ही पार्ट लिया था, आई वॉज नॉट पार्टिसिपेंट इन द एंटायर क्राइम.
ऐसा नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट जनरली जो अकम्प्लिस होता है उसको पूरे क्राइम के लिए ही लाइबल किया जाता है. अगर आपने अबेटमेंट के रूल्स अगर आपने पढ़े हैं तो और भी यूल अंडरस्टैंड दिस बेटर. इफ यू अबेट अ क्राइम देन यूल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम विच इज कमिटेड. इट डजेंट मैटर वेदर यू हैव एक्चुअली कमिटेड दैट क्राइम और नॉट. अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू की बात कर रहे हैं. एविडेंशियरी वैल्यू का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर वर टू पीपल ए एंड बी, और इन दोनों ने मिलकर कोई ऑफेंस कमिट किया है. अब इसमें से जो ए है वो डिसाइड करता है कि वो बी के अगेंस्ट अपना स्टेटमेंट देगा और वो बताएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. अब उस सिचुएशन में जो अकम्प्लिस है उसका जो टेस्टिमनी है जो वो बी के अगेंस्ट दे रहा है उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, उस पर हम कितना रिलाय कर सकते हैं और कैसे रिलाय कर सकते हैं या रिलाय कर भी सकते हैं या नहीं. आंसर इज अकम्प्लिस की जो टेस्टिमनी है वो बिल्कुल रिलायबल है. अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट जो सेक्शन था वो 133 था, एंड नाउ अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम इट्स सेक्शन 138. सो इट इज कंप्लीटली रिलायबल. ऐसा नहीं है कि इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता, बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, और यही कॉशन जो है वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया हुआ है. Section 138 states that an accomplice is a competent witness against the accused. तो क्या एक ए इस सिचुएशन में जो दोनों ने मिलकर ऑफेंस किया है, क्या ए एक कॉम्पिटेंट विटनेस है अगेंस्ट बी? आंसर इज यस. A conviction based on the testimony of an accomplice is not illegal provided it is corroborated by independent evidence. अगर प्रोसिक्यूशन के पास बी के अगेंस्ट कोई भी और एविडेंस नहीं है सिवाय ए की टेस्टिमनी के, सिवाय अकम्प्लिस की टेस्टिमनी के, और सिर्फ उस टेस्टिमनी के बेसिस पर अगर कोर्ट ने कन्विक्शन दे दिया, बी को गिल्टी डिक्लेयर करके उसको पनिशमेंट दे दी, सो दैट विल नॉट बी राइट, वो इलीगल हो जाएगा. लेकिन अगर ए के टेस्टिमनी के साथ साथ प्रोसिक्यूशन के पास और भी इंडिपेंडेंट एविडेंस है टू कोरोबरेट द टेस्टिमनी ऑफ ए जो कह रहा है उसके कहने, जो भी वो क्लेम कर रहा है कि बी ने ऐसे किया, इस वेपन से मारा, जो भी उसके क्लेम्स हैं, जो भी वो टेस्टिमनी दे रहा है अगेंस्ट बी, उसकी टेस्टिमनी को सपोर्ट करने के लिए अगर प्रोसिक्यूशन के पास इंडिपेंडेंट एविडेंस है, कोरोबरेट करने के लिए इंडिपेंडेंट एविडेंस है, तो उस सिचुएशन में कन्विक्शन दिया जा सकता है. मगर if there is no other evidence brought by the prosecution on record and there is just the testimony of accomplice, then solely on his testimony conviction cannot be done. Conviction of an individual and accused can only be done if the testimony of the accomplice is corroborated by other evidence. अगर ए ने ये बोला कि बी ने स्टैब करके मारा है, तो वो जो वेपन है या वो जो भी क्लेम कर रहा है उसका ये मोटिव था, जो भी वो बोल रहा है, उसके अलावा प्रोसिक्यूशन को इंडिपेंडेंट एविडेंस, कोई और टेस्टिमनी, कोई और विटनेसेस या कोई किसी और तरीके का एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लाना पड़ेगा जो कि अकम्प्लिस की कही हुई बात को कोरोबरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एंड देन conviction can be done. Otherwise, no. So that is the rule which says that conviction based on the testimony of accomplice is not illegal. Illegal नहीं होगा provided it is corroborated by independent evidence. तो ये प्रोवाइजो बहुत जरूरी है. इंडिपेंडेंट एविडेंस भी ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए corroborating what the accomplice is saying. Additionally, जो illustration B है section 119 का, that also mentions that the court may presume that an accomplice is untrustworthy unless corroborated in material particulars. देखिए अकम्प्लिस भी तो एक ऐसा इंसान है ना जिसने ऑफेंस तो उसने भी किया है, तो उसकी जो बात है उसको गॉस्पेल ट्रूथ नहीं मान सकते कि भाई इसने बोला है तो यही होगा. कोर्ट को भी कॉशियस रहने के लिए बोला गया है कि आप ये प्रेज्यूम कर सकते हैं कि जो कंप्लेस है उसकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई और सेपरेट एविडेंस ना आए, इंडिपेंडेंट एविडेंस ना आए. ये जो प्रोवाइजो आप अभी सेक्शन 138 में पढ़ रहे हैं, ये प्रोवाइजो अब बीएसए में ऐड किया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं होता था. तो हमेशा जो 133 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो सिर्फ यहां तक था, इज नॉट इलीगल तक, और उस सिचुएशन में कॉशन सेक्शन 119 में जो लिखा हुआ है उससे लिया जाता था. बट नाउ अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम वी हैव एडेड द प्रोवाइजो. जो बात 119 में लिखी हुई है वो हमने प्रोवाइजो में भी लिख दी है कि कन्विक्शन तो आप कर सकते हो बट कोरोबरेशन जरूरी है, इट्स मैंडेटरी. Judicial approach. Although Section 138 allows convictions based on an accomplice's testimony, Indian courts have consistently followed cautious approach, ensuring that the credibility of the accomplice's evidence is carefully scrutinized.
Corroboration by independent evidence is required in material aspects to support the testimony. तो इस सिचुएशन में जहां ए बी के अगेंस्ट जो भी टेस्टिमनी दे रहा है, प्रोसिक्यूशन को उसमें कही हुई जो बातें हैं उनको प्रूव करने के लिए इंडिपेंडेंट एविडेंस भी लाना पड़ेगा। सिर्फ अकम्प्लिस के कहने पर कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट हैज टू बी वेरी कॉशियस। इसके रीजन है कि ए वो खुद एक अक्यूज्ड है, उसने भी ऑफेंस में पार्टिसिपेट किया है। दूसरा, ही इज बिट्रेइंग द पर्सन ही हैज कमिटेड द क्राइम विद फॉर हिज ओन गुड, एंड हु नोज मे बी ही इज नाउ ऑल्सो लाइंग, राइट। तो वो कॉशन रखना बहुत जरूरी है। This principle ensures that convictions are not solely based on an accomplice's statement but are supported by other reliable evidence. सो टेस्टिमनी जो है अकम्प्लिस की वो बहुत स्क्रूटनाइज की जाती है। कोर्ट्स बहुत केयरफुल होते हैं, कॉशियस होते हैं बिफोर रिलाइंग ऑन इट। और सोली उस पर तो कभी रिलाय कर ही नहीं सकते। अगर सोली सिर्फ उसकी टेस्टिमनी पे रिलाय करके कन्विक्शन दे दिया है तो वो एक इलीगल जजमेंट होगा, इलीगल कन्विक्शन होगा, एंड इट विल नॉट be worked on. The higher courts will quash it, right? So बहुत जरूरी है कि corroboration हो, और corroboration को भी scrutinize किया जाता है कि जो independent evidence भी prosecution लाया है वो कितना reliable है, and then court reaches to a conclusion that okay, the accomplice's testimony will be taken into consideration. Conclusion: an accomplice plays a crucial role in criminal activities and can be held legally accountable. Understanding their role is essential in criminal law. बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है ना, ऑफेंसेस कोई इंसान ऐसे ओपनली तो करते नहीं है। जो लोग ऑफेंसेस करते हैं वो सीक्रेटिवली करते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट एविडेंसेस तो कभी होता नहीं प्रूव करने के लिए। बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं। अब उस सिचुएशन में जो पार्टिसिपेंट है, हुज पार्टिसिपेटिंग इन द क्राइम, वो रेडी होता है अपनी टेस्टिमनी देने के लिए अगेंस्ट अक्यूज्ड। तो इट बिकम्स वेरी एडवांटेजेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, राइट। अब वो अपनी खुशी से ऐसे राजी नहीं होता कि उसका भाई चलो आई वांट टू डू जस्टिस एंड आई वांट टू रिडीम माई सेल्फ, ऐसा उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है। अकम्प्लिस जब टेस्टिमनी देने के लिए रेडी होता है तो उसको भी कुछ बदले में मिलता है, दैट इज उसका रिड्यूस सेंटेंस होता है। उसको कोऑपरेट करता है वो, और उसके बदले में उसको रिड्यूस सेंटेंस मिलता है। अब उसका भी बेनिफिट है यहाँ पर, राइट। तो इसीलिए भी कोर्ट को कॉशियस होना पड़ता है कि अपने फायदे के लिए हो सकता है ये दूसरे को कंप्लीटली फंसा रहा हो, झूठ झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए कोर्ट को बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। लेकिन अगर जहां पर जो अकम्प्लिस है वो सही बात बोल रहा है और वो जितनी उसके नॉलेज में इंफॉर्मेशन है वो दे रहा है, एंड एट द सेम टाइम देयर इज अदर independent evidence to support his testimony, then it becomes easier for the prosecution to prove the case beyond reasonable doubt, और easily comparatively हम जो accused है उसको convict कर पाते हैं। So it's a very crucial piece of evidence, but it requires cautions, और जो कि courts करती हैं solely इसके basis पे तो conviction नहीं हो सकता, but yes, the testimony is reliable. He is a reliable witness in the whole trial, right? So this is regarding the evidentiary value of accomplice. If there's anything else you want to know about it, let us know. Thank you so much for watching. Keep learning.